We see erythropoiesis. The erythropoiesis starts by conversion of totipotent cell to pronormoblast or committed stem cell, and this pronormoblast is of large size with small amount of cytoplasm in it, large nucleus containing nucleoli, and no hemoglobin in the cytoplasm. This pronormoblast is to be converted to basophilic erythroblast, and this basophilic erythroblast has a smaller size than the pronormoblast. Its cytoplasm is deeply basophilic, chromatin network is coarse, and active mitosis is visible in this stage of erythropoiesis. Polychromatophilic erythroblast is the next stage of red cell formation, and here you see the cytoplasm is now a little pink. The cytoplasm shows both acidophilic and basophilic staining. Pink and blue are mixed in it. The nucleus is smaller and mitosis is not seen in this stage. Sometimes the nucleus is becoming more and more smaller, and this cell is decreased in size from your previous normoblast or the early normoblast. From here, you reach orthochromatic erythroblast. The orthochromatic erythroblast or the late erythroblast is having a smaller nucleus which can get out of the cell, extruded from the cell. This procedure of removal of the small dense nucleus out of the cell is called pycnosis. The hemoglobin synthesis is occurring here, which started here, is also occurring here, and the basophilic cytoplasm, which was slightly present here, is now completely turned into acidophilic cytoplasm. The reticulocyte is is the cell which is having more and more hemoglobin in it and a little reticulum of basophilic material. These are the remnants of mitochondria and the endoplasmic reticulum. This reticulocyte is now going to enter the blood vessels from the bone marrow, and it is changed to erythrocyte after 24 hours of its stay in the blood. This reticulocyte does not have a nucleus, contains basophilic remnants of the Golgi apparatus and mitochondria, and the number of reticulocytes in the blood is an index of the activity of the bone marrow. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, और अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि रेटिकुलोसाइट्स अगर ब्लड में नजर आए तो इसका मतलब है कि बोन मैरो काफी एक्टिव है. Now these are the erythrocytes. शक्ल देख रहे हैं आप इनकी? They are almost 5 million per cubic millimeter in the blood. They are like biconcave discs, and that is why they have a large surface area. The average diameter of an RBC is 7.5 micrometers. The width of the RBC at the edges is 2 micrometer, and the width of the RBCs in the center is just 1 micrometer. This makes whole of the hemoglobin present in this RBC available for exchange of oxygen and carbon dioxide.
This erythrocyte or the red blood cell is a flexible structure due to presence of spectrin, एंकाइरिन एंड प्रोटीन 3 इन इट। तो वो इसको एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं, करीब करीब रखती हैं और इसको ये स्ट्रक्चर देती है। Now there is no nucleus in this RBC, no mitochondria, no Golgi apparatus. These RBCs contain hemoglobin, and hemoglobin in males is 15 grams per 100 milliliter, and in females it is 14 grams per 100 milliliter, taken as a normal value. The source of energy in the red blood cell is anaerobic breakdown of glucose. HMP शंट आपने पढ़ा था FSC में, वो इस्तेमाल होता है, और जो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है NADH के साथ फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन वो इस्तेमाल होती है एनर्जी के लिए। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस में फूड मटेरियल, न्यूट्रिशनल मटेरियल्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं और कुछ मेटल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन की। Erythropoietin is a glycoprotein. Its molecular weight is 34,000. It is synthesized 90% in the kidneys and 10% by the liver. It is produced by fibroblast-like cells surrounding the renal tubules. Renal कहते हैं kidney की, renal tubules in cortex and outer medullae of kidney. ये कॉर्टेक्स और मेडुला ऑफ किडनी क्या होते हैं ये आपको पता चल ही जाना है बाद में। बेसिक बात ये है कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है ना वो इसको सिंथेसाइज करते हैं। अब हम देखें कि कहाँ से क्या हो रहा है। ये 4 फैक्टर्स हैं, 5। लो ब्लड वॉल्यूम, लो हीमोग्लोबिन लेवल, लो ब्लड काउंट, पुअर ब्लड फ्लो एंड सम पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी कहते हैं लंग को। इन तमाम के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यूज इज डिक्रीज्ड। These factors that decrease oxygenation produce decrease in the tissue oxygenation. This produces decreased tissue oxygenation produces erythropoietin in the kidney. Erythropoietin acts on the bone marrow. ब्लड में डाल देता है, किडनी उठा के ब्लड में डाल देता है, हीमोपोटिक स्टेम सेल्स तक जाता है, उसे कन्वर्ट करता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, रेड ब्लड सेल्स में, और जो टिश्यू ऑक्सीजनेशन की कमी हो गई थी अब वो पूरी हो जाती है। सो आपने देख लिया कि नेगेटिव फीडबैक है, यू प्रोड्यूस हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया प्रोड्यूसेस एरिथ्रोपोइटिन, एंड एरिथ्रोपोइटिन जो है दैट प्रोड्यूसेस रेड सेल्स, एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो कम हो गई थी वो पूरी हो जाती है। ठीक हो गया। टिश्यू ऑक्सीजनेशन जब पूरी हो जाती है तो फिर एरिथ्रोपोइटिन बनना किडनी में से खत्म हो जाता है। Coming to the functions of RBCs, the special biconcave shape of the RBC suits the transport of oxygen and carbon dioxide and also the hydrogen ion in blood. It helps in acid-base buffer as well, and blood group antigens are present on the RBCs. So आप ये देख रहे हैं कि आरबीसीज जो हैं उनकी बाइकनकेव शेप है। यहाँ ये जो 2 फंक्शन लिखे हुए हैं उसके अलावा इस बाइकनकेव शेप की वजह से ये बारीक से बारीक कैपिलरीज जो कि 6 माइक्रोन साइज तक की हो सकती है, और आरबीसी जो कि 7.5 माइक्रोन्स का है
उसमें से मुड़ तुड़ के फ्लेक्स होके गुजर जाता है। ये आपने देखा कि आरबीसी के लिए कमी हुई, एरिथ्रोपोइटिन आई, आरबीसी बने। अब ये जो आरबीसी बन गए हैं, इनका फेट क्या है? फेट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज they become fragile and rounded, spherical। राउंड तो पहले भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये स्फेरिकल हो गए हैं, गेंद की तरह के, और नाजुक हो गए हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोटीन्स थी एंकायरिन और स्पेक्ट्रिन, वो बहुत देर तक ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस को बर्दाश्त करती रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ उनके अंदर कमजोरियां आ गई हैं और वो अब होल्ड नहीं कर सकती बाइकनकेव शेप को। So when these RBCs pass through small capillaries of the spleen, उसमें से निकल के वो पूरे स्प्लीन में फैल जाता है ब्लड, और फिर वापस जाना होता है उन्होंने साइनोसॉइड्स के जरिए। साइनोसॉइड्स जो हैं, मैंने आपको ड्रॉ करके बताए थे कि वो डायलेटेड वेन्स हैं स्प्लीन के अंदर, जिनकी एंडोथीलियल सेल्स के जो जंक्शन हैं उसमें काफी काफी फासला है, और उस फासले में से आरबीसीज जो हैं वो अब वापस स्प्लीन में से स्क्वीज होके साइनोसाइड्स में जाने हैं। और जब उन्होंने वहां जाना है, तो जो तो है बाइकनकेव डिस्क वाले, वो तो अपनी पतली वाली साइड से स्क्वीज करके निकल जाएंगे, लेकिन जो स्फेरिकल हैं, जो गेंद की तरह बन चुके हैं, अब वो नहीं जा सकेंगे। So now the RBCs that were released in the spleen, the spherical RBCs out of them or the old aged RBCs out of them cannot go back to the bloodstream. उन्हें वहां ट्रैप कर लिया जाता है। And the spleen has got macrophages. The spleen has got macrophages. These macrophages eat up these spherocytic RBCs, and the released hemoglobin is now broken down. किस किस चीज में ब्रेक डाउन होगा हीमोग्लोबिन का? जिस जिस चीज से हीमोग्लोबिन बनी थी। एक था हीम पोर्शन और एक था ग्लोबिन पोर्शन। ये भी हम अगली डायग्राम में देखते हैं। अब उसमें से आयरन अलग निकल जाएगा, ग्लोबिन्स अलग निकल जाएंगी, और पोरफायरिन जो है वो अलग निकल जाएगी। Now the iron and globin part is reused, दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे, while porphyrin is degraded, वो नहीं काम की रही, अब उसको तोड़ना पड़ेगा, into bilirubin which is excreted in bile through liver। अब ये जो काम है ना, ये सब चीजें जो हैं, आयरन, ग्लोबुलिन और पोरफायरिन, ये स्प्लीन से वापस ब्लड में गई हैं, ब्लड से लिवर में आई हैं, और लिवर में आकर आयरन और ग्लोबिन पार्ट जो है वो भेज दिया गया है। ग्लोबिन तो टूट फूट जाएगी, उसके अमाइनो एसिड्स हैं वो रीयूज हो जाएंगे, लेकिन आयरन जो है उसे बोन मैरो में भी भेजा जाएगा, ठीक है, और बोन मैरो में ये दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। और फायरिन जो बनी थी वो अब टूटकर बिलीरुबिन बनेगी, एंड दिस इज एक्सक्रीटेड इन बाइल। बाइल लिवर में से निकलता है ना, तो लिवर बना के बिलीरुबिन को बाइल में फेंक देगा, और उसके बाद वहां से इंटेस्टाइन्स में चली जाएगी, और इंटेस्टाइन्स से फिर फीसिस में जा सकती है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो दोबारा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर लिवर में जा सकती है, ठीक है। इन नॉर्मल यंग एडल्ट 10% ऑफ द आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड डेली। जितने भी आरबीसीज एक वक्त में सर्कुलेट कर रहे हैं, उनमें से 100, हर 100 में से 10 आरबीसीज जो हैं वो रोजाना के रोजाना टूट जाते और उनकी बिलीरुबिन बन जाती है। अब हमने पिछली दफा लेक्चर में डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, तो आइए इसको एक दफा फिर देख लेते हैं।
This is one globin chain. This is number two globin chain. This is number three globin chain. And this one is number four globin chain. ठीक है. Now this is the four pyrrole rings. They are making the heme portion. There is the heme portion and there is the heme portion and here. और ये यूनी मतलब प्लेट की तरह होता है, प्लेन एक ही प्लेन में होता है, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता. यहाँ जहाँ आयरन लगा हुआ है, इधर 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 और इधर, इस आयरन के साथ ऑक्सीजन is attached to this iron, one molecule of oxygen, not an ion of oxygen. One molecule of oxygen is attracted to this iron और जो बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. वो एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं होगा और आयोनिक बॉन्ड भी नहीं होगा. ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जो कि फिर इजीली अपने आप को रिलीज भी कर सकता है फ्रॉम दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. आइए देखते हैं क्या बना. प्लाज्मा है, हम प्लाज्मा में हैं. फ्रेजाइल रेड ब्लड सेल्स जो थे, द प्लाज्मा पास थ्रू स्प्लीन, द मैक्रोफेजेस in the RES system of the spleen broke down the red blood cells, separated the heme from it. The heme was converted to biliverdin. This biliverdin is converted to unconjugated bilirubin in the liver. The unconjugated bilirubin in the liver is secreted into intestines as conjugated bilirubin. Liver ने खुद इसको conjugate किया है. Now this conjugated bilirubin is secreted into the bile and now it is passing through the intestines where the bacterial action converts it into urobilinogen. This urobilinogen, if it remains in the intestine, it will be converted to stercobilinogen, which is the color, giving color to the feces, the brown color. Okay, and it will be excreted into the, it will be excreted from the body. Now you see this urobilinogen is being reabsorbed from the GIT intestine back into the blood. Here it can again be taken up by the liver and from the liver it will again come into the hepatic circulation, enterohepatic circulation, and it can go on like this. सिक्रीट हुआ, लिवर ने लिया, लिवर ने वापस सिक्रीट कर दिया. इस तरीके से ये बाइल पिगमेंट बार बार आता रहेगा. इसके अलावा जब ये सिक्रीट होकर एब्जॉर्ब हुआ था ब्लड में तो 9 आउट ऑफ 10 जो पार्ट्स हैं वो इधर चले जाते हैं लिवर में फॉर एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन और उसमें से फिर कुछ जो है वो स्टर्कोबाइलिन बन के तो निकल जाता है इंटेस्टाइन्स में से और कुछ जो है वो किडनीज में से निकल के यूरोबाइलिनोजिन इन द किडनी आ जाता है. यहाँ जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये यूरोबाइलिन बन जाता है एंड दिस गिव्स कलर टू द यूरिन. येलो कलर, स्लाइट येलो कलर होता है, कोई इतना बहुत डार्क नहीं होता. हाँ, अगर कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा हो जैसा कि गर्मियों में होता है तो फिर इसका कलर ज्यादा तेज हो सकता है. Now let's go through briefly in regulation of total iron in the body. Whatever iron is present in the body is in the form of iron from the diet, iron taken up from heme, and iron taken up from non-heme sources of the body. इसके अलावा भी तो बहुत सारे एंजाइम्स और जगह हैं जिसमें आयरन होता है, अगरचे हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है. अब ये सारी की सारी जो हैं इसमें एक पॉइंट्स जो हैं देखने वाले वो ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन कैसे हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन कैसे हो रही है और कहाँ हो रही है, आयरन स्टोर कहाँ हो रहा है और फिर
ये कि डेली लॉस ऑफ आयरन क्या है। अब हम चलते हैं, few milligrams of iron are absorbed from small intestine, and after absorption they are taken up by transferrin. Transferrin और iron का combination बन गया. Now this transferrin iron is now going to tissues. ट्रांसफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन है, इसने अंदर ही रह जाने प्लाज्मा के, सिर्फ टिश्यूज में फ्री आयरन ने जाना है, ठीक है। फ्री आयरन एज सून एज इट गोज टू द टिश्यू सेल, it is taken up by a protein ferritin, so that this free iron itself does not do any harm to the tissue. Now this ferritin releases the free iron whenever is required. अब जितने भी स्टोरेज साइट्स हैं, तमाम टिश्यूज जो स्टोर कर रही हैं, they take up the free iron and store it as ferritin that is joined to a protein in the tissues, and this free iron can be changed to hemosiderin, and the iron from hemosiderin can be changed to free iron. This free iron can be converted to heme, and certain enzymes can break down this heme and again give free iron to the tissues. टिश्यूज से अंदर बाहर जाने के लिए आपको फ्री आयरन चाहिए। टिश्यूज में स्टे करना है तो आयरन को बाइंड करना होगा विद एपोफेरेटिन टू फॉर्म फेरेटिन, ठीक है। अब ये फेरेटिन जो है जब जरूरत पड़ती है, कुछ टिश्यूज में ये स्टोर होकर हीमोसिड्रिन बनाती है, कुछ टिश्यूज में ये हीम बनाती है, जहाँ आरबीसी बनने होते हैं वहां ये हीम बनाती है। और जब भी कोई फालतू हीम किसी टिश्यू में ब्रेक डाउन होती है, वो एंजाइम्स के जरिए ब्रेक डाउन होकर फ्री आयरन देती है, और फ्री आयरन फिर वापस प्लाज्मा में जाता है। ये फ्री आयरन जो प्लाज्मा में जाता है, फ्री आयरन के तौर पर एक्सक्रीट होता है एज 0.6 मिलीग्राम डेली। अब प्लाज्मा जो है, ये जब इसमें बोन मैरो में जा रहा है तो हीमोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन मेक्स हीमोग्लोबिन इन द आरबीसीज जो बोन मैरो में बनते हैं। ये हीमोग्लोबिन जब स्प्लीन में जाती है तो मैक्रोफेजेस इसको डिग्रेड करके फ्री आयरन बनाते हैं, और फ्री आयरन जो है मैक्रोफेजेस स्टोर कर लेते हैं, और बिलीरुबिन खाली एक्सक्रीट होता है। सिर्फ बिलीरुबिन एक्सक्रीट हो रहा है, आयरन को नहीं एक्सक्रीट कर रहे मैक्रोफेजेस। और जब ये हीमोग्लोबिन और आरबीसीज हैं कि मेंस्ट्रुएशन में जब लॉस होता है, तो 0.7 मिलीग्राम फ्री आयरन इज लॉस्ट इन द मेंसेस। सो आप ये देखें कि फ्री आयरन है जिसे आपने एब्जॉर्ब किया था, फ्री आयरन है जिसे आप एक्सक्रीट कर रहे हैं 0.6 मिलीग्राम डेली, और ये मेल के अंदर है। जब ये फ्री आयरन जो है स्टोर होना होता है तो फेरेटिन के साथ मिलकर स्टोर होता है। ये फ्री आयरन जब बोन मैरो में जाता है तो हीमोग्लोबिन बनाता है, रेड सेल के अंदर मौजूद होता है। ये फ्री आयरन जो है, हीमोग्लोबिन जब टूटती है तो बिलीरुबिन एक्सक्रीट होती है, और फ्री आयरन जो है वो मैक्रोफेजेस में स्टोर रहता है दोबारा यूज के लिए। और अगर हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड लॉस हो जाए तो 0.7 मिलीग्राम आयरन मेंसेस में निकलता है। आप देखें मेंस्ट्रुएशन में 0.7 मिलीग्राम आयरन, और इंटेस्टाइन से 0.6 मिलीग्राम आयरन। फीमेल्स में 1.3 मिलीग्राम पर डे आयरन लॉस है, और मेल्स में 0.6 मिलीग्राम पर डे आयरन लॉस है। और क्योंकि ये आयरन 1.3 मिलीग्राम पर डे 7 डेज से ज्यादा नहीं है, इसलिए एवरेज जो है दोनों में जो हम इनटेक देते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो हम ये कहते हैं कि अगर मेल में 1 मिलीग्राम आयरन पर डे देना है तो आप फीमेल में उससे डबल दें। आई समझ। बाकी सारी आयरन मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? आयरन मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री में। ये सिर्फ इसलिए कि बात मुकम्मल हो जाए कि आयरन के साथ क्या होता है, आपको दिखाया है। ये आपका एग्जाम क्वेश्चन एमबीबीएस फिजियोलॉजी में नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो आपको बायोकेमिस्ट्री वाला लिखना होगा। ये सिर्फ आपको एक नो हाउ देने के लिए कि आयरन कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ स्टोर होता है, ये एक डायग्राम दिखा दी गई है।
अब हम इसको एक और तरीके से देखते हैं। रेड सेल फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन में आयरन के साथ क्या हो रहा है और बाकी काम किस तरह हो रहे हैं। डाइट से आपको आयरन मिल रहा है, डाइट से आपको अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम आपको आयरन भी दे रहा है और आपको अमाइनो एसिड भी दे रहा है। So now this amino acids and iron are provided to the bone marrow. तकरीबन 1 into 10 raised to the power 10 RBCs हर घंटे बन रहे हैं बोन मैरो के अंदर, और उसमें 0.3 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इस्तेमाल हो रही है, बन रही है पर आवर। बोन मैरो से जो भी आरबीसीज बन रहे हैं, दैट इज 1 10 into 10 raised to the power 10, ये जा रहे हैं सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में टोटल जो आपके पास आयरन ब्लड सेल्स हैं, 3 into 10 raised to the power 13 रेड ब्लड सेल्स आपके पास टोटल सर्कुलेशन में मौजूद हैं। हम पर क्यूबिक मिलीमीटर वाली चीजें नहीं आपको दिखा रहे, इस वक्त हम आपको टोटल आयरन, डाइट, अमाइनो एसिड, इन चीजों के बारे में बता रहे हैं। So, in circulation, 3 into 10 raised to the power 13 red blood cells are present at one time, and it has got 900 grams of hemoglobin in the blood. अगर हमारा 5 लीटर ब्लड है तो उसमें ये टोटल काउंट और टोटल हीमोग्लोबिन है। 900 ग्राम्स जो है ना, ये 1 किलोग्राम से बस 100 ग्राम ही कम है। इतनी हीमोग्लोबिन होगी हमारी बॉडी में अगर हम 5 लीटर ब्लड हमारे पास है। Now this from this circulation breakdown of the RBCs is at a rate of 1 into 10 raised to the power 10 RBCs are broken down, and 0.3 gram of hemoglobin is released per hour. और इसको टेकअप करते हैं टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। सो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज एंड रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज इज कांस्टेंट एंड इक्वल, और टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम इस जरिए से आपको आयरन देता है और अमाइनो एसिड देता है, और कुछ आयरन और अमाइनो एसिड्स और बाइल हीम जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, और ये बाइल पिगमेंट इन स्टूल एंड यूरिन के तौर पर निकल जाते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन के तौर पर निकल जाते हैं। ये जो निकल जाते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, इसकी रिप्लेनिशमेंट, इसको रिप्लेस किया जाता है थ्रू डाइट। तो जो निकल गया उसे डाइट रिप्लेस करेगी, बाकी रीसर्कुलेट करेगा। आई समझ? बाकी सारा रीसर्कुलेट करेगा, जो थोड़ा सा निकल गया है उसे हम डाइट से रिप्लेस कर लेंगे। आपको बताया था कि हम छोटी छोटी चीजें, थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो हैं ये पढ़ेंगे, ईएसआर, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी वगैरह को लेक्चर में, और बाकी सारा हम उसको पढ़ेंगे किस चीज में, प्रैक्टिकल में। सो अब ईएसआर की बारी आ गई है, दो चार पॉइंट उनके बारे में देख लें और फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिकल में जाकर उनको पढ़ना है। ईएसआर इज द रेट in millimeters per hour. ESR is the rate in millimeters per hour. At this rate, the erythrocytes settle down when allowed to stand. आप एक ट्यूब लेते हैं, आप पहले एक सिरिंज में एंटीकोएगुलेंट डालकर और फिर आप ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल फिर आप एक बॉटल में डालते हैं, उसमें से सक करके आप एक ट्यूब में डालते हैं। वो ट्यूब जो है वो ग्रेजुएटेड होती है, उसे आप स्टैंड में लगा देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब आरबीसीज जो कि प्लाज्मा से भारी हैं वो नीचे बैठें। पहले घंटे में 5 या 10 मिलीमीटर प्लाज्मा का कॉलम सेपरेट आउट हो जाता है और आरबीसीज थोड़ा सा नीचे बैठ जाते हैं। Normally, the RBCs remain suspended in the blood circulation due to suspension stability.
अब ये आपने अलाउड टू स्टैंड किया था तो कॉलम ऑफ प्लाज्मा थोड़ा सा आपके लिए अलग हुआ, वरना ब्लड वेसल्स के अंदर जहां ब्लड घूम रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, वहां पर सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ द आरबीसीज उसको सेटल डाउन नहीं होने देती। अगर वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो सर्कुलेशन कैसे होगी, ब्लड फ्लो कैसे होगा? ठीक है। So when a column of blood mixed with anticoagulant is allowed to stand vertically, the red cells steadily gravitate downwards. I repeat, when a column of blood it is mixed with anticoagulant and then put in a tube and allowed to stand vertically, red cells steadily gravitate downwards. ग्रेविटेट का क्या मतलब है कि उनका एक वजन है, उसकी वजह से वो नीचे 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 जाते हैं और उसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो थोड़ा सा खाली रह जाता है, क्योंकि सस्पेंशन जो है वो अब नहीं है, सेटलिंग डाउन हो रही है। Coming to the factors that affect the ESR, erythrocytic sedimentation rate, the RBCs, properties of the RBCs increasing the ESR are increased specific gravity, अगर ESR में हीमोग्लोबिन ज्यादा है वो नीचे सेटल डाउन करेगा, increased size, अगर उनका साइज भी ज्यादा है तब भी वो नीचे सेटल डाउन ज्यादा करेगा क्योंकि वो भरा हुआ है हीमोग्लोबिन से। नंबर टू इज रूले फॉर्मेशन। जब आपके पास प्लेटें पड़ी हों और आप उन्हें एक एक प्लेट को स्लैब के ऊपर रखते जाएं धो के, तो पूरा किचन नहीं भर जाएगा आपका प्लेटों से। और अगर आप एक प्लेट के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी रखते चले जाएं तो एक ही प्लेट के सरकमफ्रेंस के हिसाब से आप उसकी ऊंचाई बढ़ा देंगे और वो प्लेटें जो हैं वो थोड़ी सी जगह में आपकी रखी रहेंगी। तो ये जो आरबीसीज हैं, जो इनकी डिस्क शेप शक्ल है, वो जब आपस में सेटल होते हैं तो वो गोले गोले स्फेयर के तौर पर नहीं सेटल होते, बल्कि वो प्लेटों की तरह एक के ऊपर एक टिकते चले जाते हैं, और ये कहलाती है रूले फॉर्मेशन। और रूले फॉर्मेशन की वजह से जब ये सेटल डाउन होते हैं तो ऊपर प्लाज्मा का कॉलम अलग हो जाता है। द फैक्टर्स दैट डिक्रीज द ईएसआर, विस्कोसिटी। अगर प्लाज्मा की विस्कोसिटी ज्यादा है तो फिर इन प्लेटों का आपस में मिलना और सेटल डाउन होना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज है आरबीसी काउंट। अगर बहुत ही सारे आरबीसीज हैं तो फिर प्लाज्मा जो है वो थोड़ा है तो फिर थोड़ा ही सेटल डाउन होगा ना। अब हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईएसआर क्यों करेंगे हम ये टेस्ट? इट इज एन इजी, इनएक्सपेंसिव एंड नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब ये है कि ये तो बता सकता है बंदा बीमार है, मगर वो ये नहीं बता सकता कि इसको कौन से वाले बैक्टीरिया ने इसके ऊपर अटैक किया है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, बीमारी की खसूसियात नहीं बता सकता, सिर्फ ये बता सकता है कि कोई बीमारी है। Now it helps in diagnosis as well as prognosis। वैसे diagnosis में कोई इतना हेल्प नहीं करता, prognosis का मतलब है progress of disease। Gnosis है knowledge, prog है उसकी जो progress है, so knowledge about the progress of the disease जो है वो आपको ज्यादा पता चलती है, diagnosis of the disease के बारे में कब पता चलता है। Physiologically, ESR can be increased in females during menstruation and pregnancy। ठीक है, सो इन कंडीशंस में बंदा नॉर्मल है, बीमार नहीं है, फिर भी ईएसआर इंक्रीज होगा। कमिंग टू द पैथोलॉजिकल वेरिएशन, पैथोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब है कि बीमारी में क्या ईएसआर बढ़ता है या कम होता है? हाँ जी, बीमारी में ईएसआर कैन इंक्रीज इफ देयर इज एनीमिया। एनीमिया में क्या है, आरबीसी का नंबर ही कम है।
आरबीसी का नंबर कम है, जब वो सेटल डाउन होंगे प्लाज्मा जल्दी से बाहर आ जाएगा। इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन में क्या है, इन्फेक्शन में गामा ग्लोबुलिन्स ज्यादा हो गई हैं। गामा ग्लोबुलिन्स जो हैं वो उसको सस्पेंशन, जो स्टेबिलिटी एल्ब्यूमिन देती है, जब एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो चेंज होती है, गामा ग्लोबुलिन्स बढ़ जाती हैं, तो ये जल्दी जल्दी बैठ सेटल डाउन हो जाते हैं। कैंसर्स, कैंसर्स में कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जो कि आरबीसीज की स्टेबिलिटी को कम करते हैं, तो जल्दी जल्दी नीचे चले जाते हैं। और लिवर डिजीज, जहाँ एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो डिस्टर्ब होती है, उसमें भी इन्फेक्शंस वाला ही मामला होता है और ईएसआर बढ़ जाता है। ईएसआर कम होगा सिकल सेल एनीमिया और पॉलीसाइथीमियास में, क्योंकि इसमें रूले फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि आरबीसी की शेप ठीक नहीं है। और इसमें रूले फॉर्मेशन तो होगी मगर इतने सारे सेल हैं कि थोड़ा ही प्लाज्मा जो है वो बचेगा बाहर निकलने के लिए। हमने ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी की बात करनी है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उस मेम्ब्रेन में से अगर आप उसको रखेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन में, कि इसकी ऑस्मोलैरिटी भी जो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो, जो 280 जो हमारा नॉर्मल है वो 280 ऑस्मोल पर लीटर हो, और बाहर जो सोल्यूशन है वो भी 280 ऑस्मोल पर लीटर हो, तो वो आइसो ऑस्मोलर होता है। तो ये आइसोटोनिक या आइसो ऑस्मोलर एक सोल्यूशन है जिसके अंदर आरबीसी डाले गए हैं। चूंकि अंदर और बाहर, सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सोल्यूशन है, दोनों में 280 मिली ऑस्मोल पर लीटर की ऑस्मोलैरिटी है, तो आरबीसी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पड़ा हुआ है इसके अंदर। और अब ये आपको बताऊं कि प्लाज्मा भी 280 मिली ऑस्मोल पर लीटर है और आरबीसी भी 280 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, इसलिए प्लाज्मा में आरबीसी नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। अगर आपने पानी भर दिया किसी सोल्यूशन में और उसमें आरबीसी डाल दिया, तो आरबीसी में ऑस्मोल ज्यादा है, पानी में कम है, तो पानी बाहर से आरबीसी के अंदर चला जाएगा, ये स्वोलन हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे तो टूट जाएंगे। कितनी बड़ी आरबीसी मेम्ब्रेन हो सकती है, थोड़ी ही होती है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आपने ऑस्मोलैरिटी ज्यादा कर दी, नमक डाल दिया इस बीकर के अंदर जिसमें पहले से आइसोटोनिक ऑस्मोलैरिटी थी, तो आरबीसी 280 था, ये 360 था, तो आरबीसी में से पानी निकल के बाहर आ जाएगा और आरबीसी श्रिंक हो जाएगा। अगर आर ये जो है ये नॉर्मल कंडीशंस है जिसमें कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी चेक हो सकती है। और अगर हमें नॉर्मल कंडीशंस की बजाय हम नॉर्मल सैंपल लें और उसको हम नॉर्मल कंडीशंस में डालें और हमें पता चले कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बढ़ गई है, इसका मतलब है कि आरबीसी में कोई खराबी है। तो कब बढ़ती है आरबीसी की ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी? ये बढ़ती है स्फीरोसाइटोसिस में, और ये एक हेरिडिटरी कंडीशन है जिसमें एंकायरिन या स्पेक्ट्रिन जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के वो मौजूद नहीं होते, तो सेल जो हैं वो स्फेरिकल होते हैं, डिस्क शेप नहीं होते, इनके अंदर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ज़्यादा है। और अगर पेशेंट जो है उसको थैलेसीमिया है, ये भी एक बीमारी है जो कि आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, या सिकल सेल एनीमिया है, और या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो इन तमाम चीज़ों में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटीज ऑफ आरबीसीज कम हो जाती है।